Watching DB Live Jammu Kashmir, and I am Mufarram Majid. It's Veterinary Week and we are here to honor the dedication, compassion and critical expertise of veterinary professionals across the globe. Veterinarians are not only the professionals who treat animals but play also a vital role in the well-being of human beings. Today we are at Veterinary Hospital Chijhama, where a screening interactive session on zoonotic diseases was organized by Animal Husbandry Department in collaboration with GMC Baramulla, marking the inaugural of the Veterinary Week 2025. You can watch this special report on Veterinary Week 2025. Healthy animals means healthy people and a healthier planet. And together, through the spirit of One Health approach, we can definitely build much stronger, safer and more resilient world. I once again welcome you all in this interactive session. So my topic I am going to discuss today on the role of veterinarian in prevention of zoonosis. As we all know, zoonotic diseases are the diseases that are transmitted between humans and animals. And there can be many more methods, many more ways of transmission of these zoonotic diseases. For example, there is direct contact. Example in case of babies, in case of brucella infection. Another is indirect contact, like in case of contaminated surfaces, water and food also, like salmonella is there, E. coli is there. There can be vector-borne transmission of these zoonotic diseases, like there is dengue virus is there, malaria is there, Lyme's disease is there, or plague is there, and many other modes of transmission through which the zoonotic diseases can spread. Coming to the global scenario, it has been reported that zoonotic diseases are responsible for estimation for about 2.5 billion cases of illness across the globe and about 2.7 million deaths worldwide every year. It's also been reported that 60% of the known zoonotic diseases, they have 60% of known infectious diseases are zoonotic in nature. आपने कोड-19 का नाम सुना, ये है हिंड्रा वायरस है, जिका वायरस है, and then मिस्री रेजिस्टेंट, स्टेफ ऑरियस है, वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट, वो सारी जो which have human and animal importance, आप देखिए ये कितनी सारी diseases हैं, and in last 3 decades में कहीं पे पढ़ रहा था, almost 30 new diseases have emerged. और उसमें we are at a continuous threat. हमारे ऊपर we have the threat of those diseases, zoonotic diseases, है ना? Then अगर हम viral diseases की बात करें, ये कुछ rabies है, इसका origin भी हम कहते हैं vampire bats हैं, अमेरिका में, बाकी यहाँ पे जो rabid dog bites की वजह से होता है, henta virus में rat है, influenza में pigs हैं, not only pigs, then this horses भी हैं उसमें, then dogs भी हैं, chikungunya. तो कहने का ये मतलब है कि ये सारी डिजीज हैं या वेक्टर बॉर्न डिजीज, वेक्टर बॉर्न है जो मॉस्किटो से फैलती हैं, तो चिकनगुनिया है उसमें से, या वी हैव जीका वायरस, तो सबका जो ओरिजिन है वो मोस्टली वो है एनिमल ओरिजिन. तो उसके बाद जो है हम क्यों वन हेल्थ, वाई वन हेल्थ, जो मुझे लगता है आई केम में भी लेट, 10-15 मिनट मुझे लेट हो गए. डॉक्टर साइमा ने, मुझे लगता है ये बात आपके साथ दिस हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस, तो मुझे इसमें ज़रूरत नहीं है कि हमारी जो मैक्सिमम डिजीज होती है वो लाइफ स्टॉक वेरिएशन होती है, एनिमल से ऑरिजिनेट होती है, इमर्जिंग डिजीजेस. अगर आप 5 नई डिजीजेस को, बीमारियों को उठा के देखोगे तो देखा गया है कि उसमें 3 बीमारियां जो होती है वो एनिमल से होती है. और दूसरा ये है कि एक बायोटेरिस्ट एजेंट, बायोटेरिस्ट एजेंट का मतलब होता है अगर हम किसी जगह में कोई बार जून है उसमें हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया डालते हैं डेलिबरेटली ताकि वहाँ पे इलनेस हो जाए या वहाँ पे लोग मर जाएं, तो उसमें से भी है 80% ऑफ दोज एजेंट्स जो है वो बैक्टीरियल एनिमल पैथोजन से. देन ये आप देख सकते हो, दिस इज 20th सेंचुरी जो है में हुआ है. 15% of the livestock in Baramulla is having this brucella infection. So you must be thinking that how much the healthcare providers are at risk, how much we are at risk. So where the veterinarians, they are the first responders to the disease. आप लोग पहले respond करते हैं disease को, हम लोग तो back stage पे होते हैं when we talk vis-a-vis the zoonotic disease. So another round of applause for you also, the veterinarians and paraveterinarians. Yesterday I was reading a document, we had to give a presentation today. I was going through a document and I read that you are 3 times more at risk of getting the zoonotic disease than us.
although the patients come to us, but you are the first responders, livestock तो आपके पास होता है, तो you are 3 times more prone to get these infections. आज प्रिंसिपल जीएमसी बारामूला और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ और डिस्ट्रिक्ट शीप हस्बेंड्री ऑफिसर हैं डॉक्टर शौकत साहब, तो उनने एक कोलैबोरेशन एक की है जो J&K में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और मेडिकल कॉलेज की। तो हम लोग यहाँ पर आज मिले हैं तो फॉर एक कंसेप्ट है वन हेल्थ का, वन हेल्थ अमंग ऑल। तो जो वेटरनेरियंस हैं या पैरावेटरनेरियंस हैं या जो मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वी आर प्रोन फॉर जूनोटिक इन्फेक्शंस। तो जूनोटिक इन्फेक्शंस वो इन्फेक्शंस होते हैं जो एनिमल्स से ह्यूमंस को आते हैं या ह्यूमन से एनिमल्स को जाते हैं। तो वो उनमें जो इन्फेक्शन जो मोस्ट कॉमन है, जैसे ब्रूसेला है, स्क्रब टाइफस है, तो हम आज यहाँ पर इसलिए आए हैं तो एक तो सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस की प्रोग्राम करने के लिए, और हमने आज उनके पेशेंट्स की हम स्क्रीन भी करेंगे, सैम्पल्स लेंगे और हम उनकी प्रिवलेंस भी देखेंगे वेदर जो यहाँ पर जो वेटरनेरियंस हैं, पैरावेटरनेरियंस हैं, क्या उनमें वो डिजीज़ हैं या नहीं हैं। तो इसलिए हम ये टेस्ट जो है ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। ये मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम है, नेशनल वन हेल्थ प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ जूनोसिस। तो ये उसमें जीएमसी बारामूला प्रिंसिपल साहब की वसत से और डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की वसत से हम ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। एहतियात तो पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स वो होते हैं, तो उनकी जो है प्रॉपर वैक्सीनेशन जो एनिमल्स का होगा या जो हैंडलर्स होंगे वेटरनेरियंस या पैरावेटरनेरियंस, उनका वैक्सीनेशन का जो प्रोटोकॉल होता है या उनका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं उनको वो वेयर करने हैं। तो मुझे लगता है मीर नदीम साहब जो हैं वो आपको इसमें ज़्यादा बोल पाएंगे जो एनिमल्स में क्या हम लोगों को एहतियात बरतना पड़ेगा वाइल्ड हैंडलिंग। स्कॉस से हूँ, फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज से। तो एहतियात जो हमें बरतनी चाहिए, चूँकि हम जानते हैं कि जो डिजीज़ होती है, जो हमें ह्यूमन्स में डिजीज़ होती है, 60% से ज़्यादा डिजीज़ जो है वो एनिमल ऑरिजिन की होती है। तो जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे इस शोबे के साथ एनिमल हस्बेंड्री या शीप हस्बेंड्री के साथ मुंसलिक हैं, काम कर रहे हैं लोग, वो एट रिस्क रहते हैं ज़्यादा टू गेट दीज इन्फेक्शंस। तो एहतियात ये हैं कि जब भी हम एनिमल्स के साथ डील करें, इनका ट्रीटमेंट करें, तो एक हाइजीनिक तरीके में करें, वेयरिंग प्रॉपर प्रोटेक्टिव ग्लव्स, गियर्स जैसे ग्लव्स यूज़ करके, सैनिटाइजेशन यूज़ करके वो प्रोटोकॉल्स हम फॉलो करें। वैक्सीनेशन का खास ख्याल रखें, उनमें एनिमल्स वैक्सीनेट हम उनको वक्त वक्त पे उनको वैक्सीनेट करें, और अपने आप को इन जो है बीमारियों से अवेयर करें कि कौन कौन सी बीमारियां यहाँ पे ज़्यादा हैं हमारे एनिमल्स में, ताकि उन बीमारियों के मुतल्लिक उनको जानकारी मिले और वो उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है वो उस पर एहतियात ये उसमें अपने आप में ये करें। तो उसमें ये भी है कि जो हमने देखा है, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि ब्रुसेलोसिस बहुत ही अहम बीमारी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंस देखा गया है हमारी इस यूनियन टेरिटरी में। तो उसमें जो है अबॉर्शन के केसेस ज़्यादा होते हैं एनिमल्स में। तो जब भी कोई अबॉर्शन होता है एनिमल्स में, तो उस केस में उस अबॉर्टेड एनिमल को, अबॉर्टेड फीटस को नेकेड हैंड से हैंडल ना करें, उनको प्रॉपर ग्लव्स, प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर के साथ यूज़ करके उसको किसी अच्छी जगह पे वो डिस्पोज ऑफ कर दें। और वहाँ उसके बाद टाइम टू टाइम जो है यहाँ पे आज एक प्रोग्राम जो है स्क्रीनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री की तरफ से। तो वो प्रॉपर टाइम पे स्क्रीनिंग अपने आप को कराएं, ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी भी तरीके का कहीं इन्फेक्शन लग जाता है तो अवलीन फुर्सत में और पहले ही उस पर काम किया जाए और उसको ट्रीट किया जाए।